Recording starting. Okay, so I've started it. Assalamu alaikum guys. So today we are going to focus on grammar and sentence improvement and close passages वाला part. ठीक है, शायद told me कि आप लोग को उसमें बहुत मसला आ रहा है. So आज we are going to do a lot of practice on that and hopefully session के end तक आप लोग को grammar के rules थोड़े clear हो जाएंगे. जैसे passages में heard कि आप लोग better perform कर रहे हो, which is really good. ठीक है, so we are going to focus on grammar today. Let me share my screen. Okay, let's start with grammar. Okay, let's start with close passages, okay, because they're easier. No, balki let's start with grammar sets because they're easier to do for you guys. But we'll move on to the difficult ones. Let me. Is it clear? Is the screen visible? अगर मैं 2 पेज कर दूं तो सही है सबको. एक सेकंड इसको बड़ा करती हूँ. Is it okay for you guys? Okay. Let's start with this one. Have you guys read this passage? इसमें वैसे पढ़ने का इतना था नहीं because इसमें सिर्फ grammar के parts करने हैं हमने. ठीक है, so we are going to focus on that. Okay, so let's go through this passage एक बार because इसमें वो comprehension वाले सवाल तो नहीं है. इसमें सिर्फ grammar वाला सवाल है because ये grammar passage है. ठीक है, so let's read. पहले साथ questions करते रहेंगे. ठीक है, बल्कि पहले पूरा passage read करना है. Have you guys read the passage? तो मैं पढ़ूँ नहीं फिर दोबारा. Do you guys know what it's about? Yes, you've read it. सही है, ठीक है. So let's do the first one then. It's about Greek. Just नहीं पढ़ा, I'm going to give an overview. It's about Greek yogurt and उसके benefits and how Greek yogurt is better than regular yogurt. ठीक है. Okay, so यहाँ पर let's start with the first question. Given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt outdo the potential benefits or the potential drawbacks of its production. अब यहाँ पर हमें option select करना है. तो what do you guys think should be the answer? Okay, no change. D. Okay, or anyone else? D. D. Okay. The person who said no change, why do you say it's no change? Nisha, Bhumika, and one other person. Okay, I want reasoning क्योंकि तुम आप लोग की reasoning को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे बताओ कि जो आप लोग options choose कर रहे हो, be it D, C, or no change. Tell me, why do you think it's that? Give me the reasoning, guys. Abdul Wajid, Bhumika, Nisha, Aliyan, all of you guys, जिन्होंने A और C बोला है. Why do you think it's that? Ahmed also, you also said no change. Okay, you're saying B हो सकता है या नहीं हो सकता सवेरा? अच्छा, anyway, no one's answering. Okay, outdo मतलब ज़्यादा. देखो, outdo जो है ना mostly performances और उसमें यूज होता है. अगर देखो जब आप किसी drawbacks, जब आप किसी pros and cons, किसी advantage, disadvantage, drawbacks और फायदों की बात करते हो ना, तो हमेशा आप उनको वे करते हो. जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रॉबैक्स जैसे बैलेंस होता है ना, तो हम कहते हैं कि ड्रॉबैक्स आउटवे दी एडवांटेजेस. हमेशा आप जो है ना एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स सबको आउटवे करते हो. आउटडू का मतलब होता है किसी चीज से बेहतर परफॉर्म करना. ठीक है, किसी चीज से बेहतर परफॉर्मेंस देना, उसकी एक्शन ज्यादा बेहतर होना, दैट इज आउटडू. जैसे मैं बोलती हूँ कि निशा आउटडिड सवेरा इन द एग्जाम, तो उसका मतलब उसने बेहतर परफॉर्म करा. तो मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि निशा आउटवेड. उसका तो मतलब है कि उसका मतलब वेट के सेंस में जा रहा है, विच इज नॉट क्या कहते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट एज वेल और कॉन्टेक्चुअली भी ठीक नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पर आउटवे का मतलब है जब आप किसी दो चीजों को वे कर मतलब चेक कर रहे होते हो कि कौन सा बेटर है एंड कौन सा ज्यादा है, एंड एडवांटेजेस आर आउटवेइंग द डिसएडवांटेजेस. ठीक है,
इज इट क्लियर? आउट परफॉर्म का भी सेम मतलब है कि परफॉर्मिंग बेटर देन समवन, या बीइंग, हाँ मतलब परफॉर्मिंग या डूइंग समथिंग बेटर देन दी अदर थिंग और अदर पर्सन। सही है, जरूरी नहीं यहाँ पे पर्सन की बात आ रही, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर्सन की बात होगी, ये तो बिल्कुल थिंग्स की बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक सेकंड। Okay, let's read this paragraph. The main environmental problem caused by the production of Greek yogurt is acid weight, ठीक है? Because it requires up to 4 times more milk to make than conventional yogurt does. Greek yogurt produces larger amount of acid weight, which is difficult to dispose of. To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses for acid weight. They can add to livestock feed as a protein supplement, and people can make their own a Greek-style yogurt at home by straining regular yogurt. चलो इसका आंसर मुझे बताओ कि what should be the answer to this? इसके दो ऑप्शन यहाँ पर है एंड एक ऑप्शन यहाँ पर है। अच्छा, ऑप्शन 1 तो नो चेंज है ना, सो गाइस कैन जस्ट लुक इधर से एंड टेल मी। Allianz says it's B. Okay, anyone else? I don't want you guys going the answer key and checking the answer, जिसमें फायदा नहीं है। Try doing it मेरे साथ, ठीक है? एंड जो भी आंसर मुझे बता रहे हैं प्लीज मुझे रीजनिंग के साथ बता दो। Okay, Shaheen says it's D. देखो, for a moment I also thought it's D, but why is it not D? I'll tell you and you guys will be like, हाँ ये बहुत sense बनी। See, read the previous sentence. What does it say? To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses. What does this imply? Is there one use or is it more than one? More than one, right? सही है, तो यहाँ पे पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि okay, more than one है। आलिया, मैं you're right, but नहीं, देखो B and D both are very confusing. So why is it B and not D? Let me tell you this. ठीक है, देखो it says a number of uses. देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको को बताती हूँ कि I have a number of reasons that I'm not going to the party. My mom is not allowing. So you'll be like, okay, but what are the other reasons? Because you said there are a number of reasons, right? So it does not make sense कि अगर मैं previous sentence से बोलूँ कि there are a number of uses, and then मैं उसके बाद एक सिर्फ यूज बता दूं कि they can add it to livestock and feed as a protein supplement which provides an important element of their diet. ये तो सिर्फ एक यूज है, इधर मैंने number of uses बोला था। You need to comply to that and tell at least at least 2 uses ताकि वो number of uses में count हो जाए। ठीक है, अगर मैं तो इसका फिर आंसर हो जाएगा added to livestock feed as a protein supplement and converted into gas as to use as fuel for in electricity production. So that means कि more than one uses आ रहे हैं, तो इससे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी कब करेक्ट होता? जब यहाँ पे बोला होता कि to address the problem of disposal, farmers have found a use for acid waste। फिर हम कहते हैं कि okay, yes, D is right because फिर तो B में more than one आ रहा है। Is that clear to everyone? You need to look at the former and the latter sentence carefully and look कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, is it clear now? Should I move on? Okay, question number 3 read करते हैं। Question number 3 यहाँ पे पढ़ते हैं। If it is improperly introduced into the environment, acid where runoff can pollute waterways, depleting the oxygen content of streams and but electricity. What do you mean, Ahmed? Are you saying कि acid वे को electricity में कैसे use करती है? Is that what you're implying? अच्छा, anyway, पूरे पैसेज में बात, yes, तो पूरे पैसेज में तो फिर इसकी बात भी नहीं हुई प्रोटीन सप्लीमेंट की। They're saying, Ahmed, the main purpose of this sentence, ये this paragraph है, is कि Greek yogurt का एक बाय प्रोडक्ट है। Do you know what a byproduct is? Byproduct is a product जो main use का नहीं होता, सही है, एंड इट्स द क्या कहते हैं, जैसे शुगर केन में एक जैसे वो बनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज का बाय प्रोडक्ट समथिंग जो मेन प्रोडक्शन के असाइड एक प्रोडक्ट होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ग्रीक योगर्ट का बाय प्रोडक्ट इज एसिड वे। तो अब वो कह रहे हैं कि एसिड वे इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट इफ इट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। तो इस डिस्पोजल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए व्हाट फार्मर्स हैव डन इज कि उन्होंने बाय प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? उन्होंने बोला कि उसके कुछ नंबर ऑफ यूजेस हैं। पहला यूज है प्रोटीन सप्लीमेंट और दूसरा यूज उन्होंने बता दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया।
ठीक है, मूविंग ऑन. If it is improperly introduced into the environment, acid way runoff can pollute waterways depleting the oxygen content of streams and river as it decomposes. इसका आंसर क्या होगा? No change. Yes, it is no change. Why is it no change? कोई और ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर जिसको ए के अलावा कोई ऑप्शन लग रहा हो? देखो, अगर हम ये यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा ना, एस बिल्कुल अलग से आ रहा है, तो इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. ठीक है, कुड हैव पोल्यूटेड का मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो करंट पास्ट फ्यूचर सबकी बात, एक जनरल इन्फिनेटिव बात करें कि जो है ना, एसिड वे कैन पोल्यूट वाटरवेज. ठीक है, मतलब वो कर सकता है. इट्स नॉट कि समथिंग दैट फ्यूचर में, वो जनरल बात कर रहे हैं, तो हम कुड हैव टू यूज नहीं कर सकते. हैज पोल्यूटेड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास हमें कोई एविडेंस ही दी हुई कि उसने पास्ट में पोल्यूट किया है या नहीं, तो हम हैज पोल्यूटेड की बात नहीं कर सकते. ऑल्सो सॉरी इफ माई वॉइस इज क्रैकिंग अ बिट टुडे, मेरा गला खराब हुआ है, सो अगर ज्यादा हो तो मुझे बता देना. एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, yogurt manufacturers, food scientists, and government officials are also working together to develop additional solutions for reusing. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एंड के पहले कभी भी आपके पास सेमी कॉलन नहीं आता. सेमी कॉलन का मकसद क्या होता है? सेमी कॉलन, लेट्स रिविजिट. सेमी कॉलन का मकसद होता है टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस. ठीक है, बट विदाउट द यूज ऑफ अ फुल स्टॉप. ठीक है, कॉलन का मतलब क्या होता है? कॉलन का यूज क्या होता है? कॉलन का यूज होता है टू एक्सप्लेन समथिंग दैट इज प्रीवियसली बीन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, या फिर स्टार्ट अ लिस्ट. ठीक है, तो यस, सेमीकोलन का मतलब यही होता है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस व्हेन यू डोंट वांट टू यूज अ कॉमा. इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फुल स्टॉप बेसिकली. ठीक है, एंड यू कैन नॉट यूज एंड से पहले एंड के बाद दोनों कॉमास. दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ठीक है, so इससे जो है ना, इसका आंसर सी है, विच इज करेक्ट, बिकॉज आप लिस्ट स्टार्ट करो. रिमेंबर आई टोल्ड यू गाइस अबाउट द ऑक्सफोर्ड कॉमा. तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉमा की इम्प्लीकेशन आ रही है कि योगर्ट मैन्युफैक्चरर्स, फूड साइंटिस्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे लिस्ट शुरू हो रही है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉमा. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. थ्रू दीज कन्वर्जेशन, अच्छा हमने ये पढ़ लिया. ठीक है, थ्रू दीज कंजर्वेशन मेथड्स, दो दीज कंजर्वेशन मेथड्स कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, they are well worth the effort. Question number 5 per. The writer is considering deleting the underlined sentence. Do you think he should or he should not? एक second. Let me scroll down. बताओ. Okay, Shakil says it's A. पहले तो decide करो yes या no. देखो, yes. अच्छा अजान हो रही है, so I'm going to take a, I think I'm going to take a 10 minutes break. सब असर पढ़ के आ जाओ, and then we'll restart. Is that okay with everyone? Okay, so 5:35 I'm going to resume the class. ठीक है, असर पढ़ के आ जाओ. अच्छा, सब डिफरेंट जोन्स हो. ठीक है, सो लेट्स वेट 10 मिनट्स, फिर वील गिव इट. नहीं, यहाँ मेरे यहाँ तो जान हो रही है, सबका वो डिफरेंट आई थिंक एरियाज है ना. अभी वाज नॉट फ्रॉम कराची, इसलिए. एनीवे 2 मिनट्स अजान ब्रेक, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव 5:45 पे नमाज ब्रेक. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा डू यू गाइस थिंक कि डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा देखो, पिछले पैराग्राफ में बात क्या हो रही थी?
पिछले पैराग्राफ में बात हो रही थी अबाउट रीयूजिंग या कंजर्विंग एसिड वे विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रीक योगर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर the last sentence says yogurt manufacturers, food scientists and government officials are also working together to develop additional solutions for reusing it, ठीक है। Then the paragraph Indian says though this conservation method can be costly and time consuming, they are well worth it. I personally think कि ये तो ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये कह रहे हैं कि मतलब कि बाय प्रोडक्ट जो है एसिड वे, हालांकि उसको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको कंज्यूम करना इज ए कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट उसको कंज्यूम उसको मतलब इट्स वेल वर्थ द एफर्ट, ठीक है। तो व्हाई शुड इट बी यस एंड व्हाई नॉट नो, मतलब आई डोंट थिंक करना चाहिए, बिकॉज आगे भी उन्होंने फिर मतलब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अबाउट दी बाय प्रोडक्ट उसको कंजर्व कैसे करते हैं, और फिर उन्होंने बताया कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन इसको करना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज ग्रीक योगर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो ग्रीक योगर्ट के एडवांटेजेस जो है ना वो मतलब वो इतने ज्यादा है कि बाय प्रोडक्ट को जो कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में जो कॉस्ट और टाइम जाता है वो उसका एफर्ट इज वर्थ इट, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। व्हाट आर यू सेइंग? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑल ऑफ यू थिंक इट शुड बी यस एंड नॉट नो? आर यू श्योर? कोई भी ऐसे बंदे नहीं जिसको सी और डी में से कुछ लग रहा हो? Shakil got my point. Great. So ये देखो, this is what is known as a transitionary sentence. It's not. It's like a transition. ठीक है? Transition is कि जिससे आप पिछले पैराग्राफ से या पिछले आइडिया से नेक्स्ट आइडिया को कनेक्ट करने के लिए आप अगर मैं इसको हटा दूं ना, देखो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशनिस्ट कंसीडर ग्रीक योगर्ट टू बी हेल्दी फूड। वो फॉरन जो है ना चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी बात हो रही है एसिड वे की, और यहाँ पे बात हो रही है ग्रीक योगर्ट की फॉरन से। हम एकदम से इसको अहमद, मैंने कहा ना, पर मैं 5:45 पे ब्रेक दे देती हूँ बिकॉज सब कह रहे हैं कि अभी मतलब टाइम शुरू नहीं हुआ असर का सबके पास, तो मैं 5:45 तक ब्रेक दूँ। मैंने कहा ना, डिडंट आई से इट? ओके, रिपीट कर दिया। देखो अमानी, दिस इज अ ट्रांजिशन, ठीक है, जो पिछले आइडिया से नेक्स्ट आइडिया को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस या प्रीवियस पैराग्राफ? इट वाज के एसिड वे जो है, ठीक है, दैट इज अ डेंजरस बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रीक योगर्ट, ठीक है। लेकिन उसको लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, farmers and manufacturers and scientists and government officials, they're finding ways to reuse it, ठीक है। and the next line अगर मैं इसको हटा दूं ना तो फिर उसके बाद डायरेक्ट ग्रीक योगर्ट की बात आ जाती है। we need a transition जो आपकी जो है ना एसिड वे से लेकर ग्रीक योगर्ट पे दोबारा शिफ्ट कर सके, सही है। सो दिस सर्व्स एज अ ट्रांजिशनरी सेंटेंस एंड इसका आंसर नो होना चाहिए। बट व्हाई शुड इट बी नो? अब some people will say C and some people will say D because it continues the explanation of how acid way can be disposed of safely. No, because देखो इसका main purpose is transition. So this is not the reason why it is used. The reason is it sets up the argument, क्योंकि ग्रीक योगर्ट के इतने बेनिफिट्स है कि उसका जो बाय प्रोडक्ट है ना उसके ड्रॉबैक्स को इग्नोर करना इज वर्थ द एफर्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स डी। Does that make sense to everyone? Moving on to question number 6. Nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food. It is an excellent source of calcium and protein, serves to be a digestive aid, and it contains a few calories in its unsweetened, low in fat, non-fat form. इसका क्या आंसर होना चाहिए? Yes, it should be B. ठीक है, because serves to be नहीं होता, to be is infinitive, वो वैसे यूज नहीं करते हो। देखो serves as होना चाहिए ना, that is a common sense thing कि इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं। हम ये कहते हैं कि serves as it serves as a purpose to this, it serves as this, ये common है कि हमें पता है कि it should be serves as a digestive aid, ठीक है। serves like is fine but it's not suitable for this word serves। हम हमेशा कहते हैं serves as कि उसका पर्पस ये है, ठीक है। तो इट शुड बी एज, सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सर्व्स एज अ डाइजेस्टिव एड एंड इट कंटेन्स फ्यू कैलोरीज इन इट्स अनस्वीटेंड। व्हाट शुड द आंसर फॉर 7?
यस इट शुड बी सी. व्हाई? बिकॉज पैरेललिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना, देखो अगर इट, सोनी में बताती हूँ. देखो यहाँ पे इट्स सेइंग कि इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन. अगर इट यहाँ पे यूज होता ना तो इट शुड हैव बीन इट सर्व्स एज अ डाइजेस्टिव एड एंड इट कंटेन्स. लेकिन एक दफा इट यूज हो गया है, उसके बाद कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी यूज नहीं होगा. इट शुड बी सिर्फ कंटेन्स. ठीक है. व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? विल कंटेन तो ऑब्वियसली जनरल बात नहीं हो रही, और कंटेनिंग भी नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. और 6 का, एक मिनट मैम, 6C. अच्छा देखो 6C इसलिए नहीं हो सकता कि, देखो इफ आई से कि the okay, the set that I provided to my students serves like a practice to them. Does that make sense to you? Yeah, if I say the practice set that I provided to my students serves as practice to them, that makes sense, right? You always say serves as, you don't say serves like. यहाँ पे as का मतलब कंपैरिजन वाला as नहीं है, that is to be noted. यहाँ पे as का मतलब है to connect the purpose relation. purpose की relationship होती है ना, किसी चीज का purpose क्या है, तो this serves as. ठीक है. Is it clear now? आलियान, is it clear? किसी और ने भी सवाल पूछा था ये वाला. अच्छा, why not serves for? देखो आयशा, अगर आयशा इज योर फर्स्ट क्लास, हैव यू वॉच्ड द रिकॉर्डिंग्स पहले की? बिकॉज ये सारा ग्रामर का पार्ट है, बट एनीवे आई वांट टू एक्सप्लेन इट. ओके. ओके, वन फॉर नाउ. ठीक है. मेक श्योर यू वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है. ओके, सो देखो सर्व्स for Aisha, that is grammatically incorrect. ठीक है. You देखो there are certain words जिसके साथ आप कुछ ही जो है ना वो यूज कर सकते हो वर्ड्स आकर, जिसमें बोलती हूँ एड्रेस टू. ठीक है. प्रेफर ओवर या प्रेफर टू. ठीक है. ये फिक्स्ड होता है, तो सर्व्स एज इज फिक्स्ड. सर्व्स फॉर डज नॉट मेक सेंस. देखो अगर मैं सर्व्स फॉर यूज करती हूँ ना, तो इट विल बी it is an excellent source of calcium and protein, serves for a digestive aid. मतलब यहाँ पे भी सर्व्स का मतलब चेंज हो जाता है. इट बिकम्स सर्व फॉर डाइजेस्टिव एड का मतलब है कि वो उसका काम, वो उसके लिए काम करते हैं. सर्व्स फॉर डाइजेस्टिव एड. ठीक है. लेकिन सर्व्स एज का मतलब है उसकी तरह काम करते हैं. ठीक है. ये फर्क है फॉर और एज में. अच्छा, question number 8. Let's go to question number 8. In its unsweetened, low and non-fat forms, Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt is. Also, because it is more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein per serving, thereby, अच्छा, also, अब let's go to question number 9 and see. अब बताओ. Question number 9 का क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे also है ना, तो you guys need to understand. Also का देखो, there are 2-3 kinds of relationships जो ये जो subordinating conjunction होते हैं ना वो यूज करते हैं. Also का मतलब होता है additional purpose होता है कि वो किसी पुराने आइडिया को नए आइडिया से कनेक्ट करते हैं इन द सेंस ऑफ कि वो उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है. जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, ऑल ऑफ दीज आर एडिशनल फ्रेजेस. ठीक है. इन अदर वर्ड्स का मतलब है, इन अदर वर्ड्स का मतलब भी, इन अदर वर्ड्स का मतलब है कि आप किसी चीज को पैराफ्रेज करके समझा रहे हो. ठीक है. देयरफॉर का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फॉर इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप. ठीक है. एग्जाम्पल दे रहा है वो. ठीक है. यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम्पल, जो बेनिफिट्स चल रहे हैं वो पीछे भी बेनिफिट्स चल रहे हैं, आगे भी बेनिफिट्स चल रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी वर्ड होना चाहिए था ना, इट शुड इट शुड बी ऑफ द फॉर्म कि वो पुराने को नए से कनेक्ट करे. यहाँ पे फर्दर मोर ऑल्सो एडिशनल ये होना चाहिए कि पुरानी इंफॉर्मेशन को मतलब कनेक्ट करे विद न्यू आइडिया. सेम ही पैटर्न पे चल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, नो चेंज. सही है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
Moving on to question number 9. एक second. Also, because it is more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein per serving, thereby helping people stay satiated for long periods of time. Let's go to the options. And what should be the answer? Batao. Okay, why A? अच्छा डी अगर आप बोल रहे हो तो आप लोग ये कह रहे हो कि हेल्पिंग पीपल स्टे सफिशिएंट, मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि लोग काफी होते हैं काफी टाइम तक, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. सफिशिएंट इज नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर. ठीक है. एंड लेट्स गो टू कॉम्प्लेसेंट. व्हाट डज कॉम्प्लेसेंट मीन? इसका मतलब होता है कि मतलब कॉम्प्लेसेंट का लिटरल मतलब तो ये होता है कि जब आप किसी की मतलब अपनी अचीवमेंट पे प्राउड और स्मगनेस शो करो. सही है. तो ये भी आपके हंगर के हिसाब से डज नॉट गो राइट. फुलफिल्ड और जो हम सैचुरेटेड वर्ड था, लेट्स गो टू बोथ ऑफ देम एंड सी कौन सा. देखो, हेल्पिंग पीपल स्टे फुलफिल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, यस दैट मेक्स सेंस, बट देखो व्हाट इज द टोन ऑफ द पैराग्राफ. द टोन ऑफ द पैसेज इज फॉर्मल. ठीक है. तो सैचुरेटेड, यस इट्स द सेम मीनिंग एग्जैक्टली. फॉर्मल है टोन. ठीक है. तो फॉर्मल में फुलफिल्ड साउंड्स लाइक अ मोर इनफॉर्मल वर्ड्स. ठीक, इनफॉर्मल वर्ड. इससे हम सैचुरेटेड यूज करेंगे बिकॉज हमें टोन को भी देखना होता है कि ये देखो द टोन फॉर दिस सेंटेंस इज इंफॉर्मेटरी, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है. इट्स इट्स फॉर्मल. ठीक है. तो इससे आपको वर्ड इस हिसाब से यूज करना पड़ेगा. What if you don't know, then you have to make an educated guess. That's all I can say. Let's do question number 10 now and then we'll go for a set. ठीक है. Then take a 10 minutes break. क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है, बिकॉज कंज्यूमर्स रीड द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीक योगर्ट एंड सपोर्ट दोज हु मेक एंड सेल इट, देयरफॉर फार्मर्स एंड बिजनेसेस should continue finding the safe and effective methods of producing the food. अब मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे देखने में क्या मसला लग रहा है. सबसे पहले यहाँ पे दो यूज हुए हैं, एक बिकॉज एंड एक देयरफॉर. हमेशा एक यूज होना चाहिए, राइट. ऑलरेडी बिकॉज कंज्यूमर्स रीड द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीक योगर्ट एंड सपोर्ट दोज हु मेक एंड सेल इट, तो फिर देयरफॉर नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है कि बिकॉज ये हो रहा है तो ये हो रहा है, देयरफॉर भी यही बता रहा है कि ये हो रहा है तो इस वजह से ये हो रहा है. तो देयरफॉर नहीं आना चाहिए. इट शुड बी एंड सेल इट फार्मर्स एंड बिजनेसेस बिकॉज ऑलरेडी बिकॉज पहले यूज हुआ है, राइट. तो द आंसर शुड बी 10 का बी. इज इट क्लियर? Okay. Let's take a break 7 minutes की. ठीक है. 5:50 तक we're going to come back and resume the class. Okay. Let's move on. ये grammar passage मैंने आप लोग को एक करवा दिया. ठीक है. Now we are going to move on to sentence improvement. ठीक है. Because इसमें आप लोग को बहुत जरूरत है. ठीक है. And dual passage. अच्छा अहमद, वो ना I am thinking मैं Saturday को कराऊं because आप लोग को अभी improvement की बहुत जरूरत है. Sentence improvement की. So we're going to do that पहले. Okay. So let's start with question number 1. Okay, read it and tell me what do you guys think, because इसमें we are going to take a lot of time. I don't mind अगर हम इसमें सिर्फ 10 या 12 भी करें आज, but I want कि आप लोगों के concepts clear हो जाए बिल्कुल. ठीक है. So question number 1, read करो and tell me what you think.
Okay, anyone else? अहमद के अलावा? Okay, everyone saying के आंसर बी है, ठीक है. Anyone else जिसको कोई और ऑप्शन लग रहा हो? Yes, the answer is B. And let's go into the logics, ठीक है. देखो, created in October 1972. हम इसमें what we're going to do is हम हर एक ऑप्शन को रख के देखेंगे, ठीक है. Created in October 1972, the Consumer Product Safety Commission, which enacted a host of regulations affecting a wide range of goods from overly flammable actresses to unhealthy aerosol sprays to fireworks. यहाँ पे जब which आ जाता है ना, तो फिर ये sentence fragment बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. It becomes a sentence fragment. What is a sentence fragment? या फिर हाँ, sentence fragment क्या होता है कि जिसमें आगे the reader is expecting the sentence to be continued, लेकिन the sentence ends, और वो एक error होता है, ठीक है. because जब मैं पढ़ी कि which enacted blah blah, तो उसका क्या, तो which के आगे भी तो कुछ होगा ना. सही है. तो अगर जैसे मैं बोल देती हूँ कि सवेरा the highest scorer of the last quiz, खत्म. so फिर आगे क्या, उसका कुछ बताओ, because which हमने यूज करा है, सॉरी who यूज करा है, who was the highest scorer of the last class, ठीक है. तो आगे यूज करना पड़ेगा, तो हमने वो नहीं करा हुआ, तो दैट बिकम्स अ सेंटेंस फ्रेगमेंट, ठीक है. सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, created in October 1972, a host of regulations affecting a wide range of goods enacted by the Consumer Safety Commission from overly, that serves the same sentence. यहाँ पे sentence fragment हो रहा है कि यहाँ पे कोई is आ रहा, कोई verb नहीं आ रहा, कोई ठहराव नहीं आ रहा यहाँ पे. It's continuing like a modifier. तो C is wrong as well. D, created in October 1972, a host of regulations enacted by Consumer Safety Commission which affected a whole same thing. वापस यहाँ पे which आ गया, और आगे कोई ऐसी चीज है नहीं कि हम उसको sentence fragment ना बोले. So this becomes a sentence fragment as well. E क्या है? Created in October 1972 when a host of regulations affecting a wide range of was enacted by the consumer product. ये भी देखो, ये भी बन जाता है आपका sentence fragment. अब B पढ़ते हैं, B में फर्क क्या है? B is saying, created in October 1972, the Consumer Product Safety Commission enacted a host of regulations affecting a wide range of goods from overly flammable addresses to unhealthy aerosol space fireworks. यहाँ पे आपके पास verb भी सही placement हुई है, ठीक है. यहाँ पे कोई fragment भी नहीं है, and this is the right answer, ठीक है. Everyone is clear on this? Okay, moving on to question number 2. Read it and tell me what you guys think the answer is. Okay, C or A. Okay, let's. अच्छा देखो, one thing I want to let you guys know, एक tip है. अगर दो आंसर देखो, never go for the dragged answer, ठीक है. हमेशा 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 गो, अगर दो ऑप्शन देखो, इसमें दो से ज्यादा ऑप्शन हमेशा सही होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट. conciseness is key. Go for the concise answers, because हमेशा हम ग्रामर में इंग्लिश में कोशिश करते हैं कि जितना कम्पैक्ट, जितने कम वर्ड्स यूज करके हम अपने आइडिया को पोर्ट्रे कर सके, हम वो यूज करते हैं. तो why go for extra words, ठीक है. let's read all these sentences, let's read all the options. The radiation emanating from the sun has been very nearly constant for millions of years, but the amount of heat that falls on the Earth's surface depends on both the length of the period of daylight as well as on the angle of incidence of incoming sunlight. ठीक है, ये A था. Let's read C, क्योंकि C और A में confusion है. The amount of heat that falls on the Earth's surface depends both on the length of the period of the daylight. अच्छा, यहाँ पर देखो, this is not a problem. ये तो दोनों में हो सकता है, on both या both on, that is completely okay. But as well as देखो, यहाँ पे extra है और फजूल का है, ठीक है. बेफजूल नहीं है, फजूल है, ठीक है. as well as फजूल है because हम and के साथ देखो, जब हम and यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है
एंड सर्व्स इज द सेम थिंग एज वेल एज, ठीक है, मतलब एज वेल एज खामा का एक्स्ट्रा वर्ड्स है, सो इसमें एंड को यूज करेंगे, तो कंसाइसनेस पे बात आ जाएगी, ठीक है। देखो, और प्लस यहाँ पे ना यू मोस्टली यूज बोथ और नीदर वगैरह बिफोर द प्रपोजिशन, ठीक है। यू डोंट से डिपेंड्स ऑन, देखो डिपेंड्स ऑन बोथ द लेंथ इज आल्सो ओके, बट डिपेंड्स बोथ ऑन द लेंथ ऑफ द पीरियड, बल्कि यस दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज देखो ऑन पहले आ रहा है, यहाँ पे भी ऑन आ रहा है, तो बोथ ऑन से पहले आना चाहिए था ना, वरना पैरेललिज्म वो हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। डिपेंड्स ऑन बोथ द लेंथ ऑफ द पीरियड विद लेट एज वेल एज ऑन। देखो यहाँ पे ऑन अगर दोनों में हम यूज कर रहे हैं, तो बोथ शुड बी बिफोर दैट, तभी तो पैरेलल होगी ना दोनों चीजें, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, तो डिपेंड्स बोथ ऑन द लेंथ ऑफ द पीरियड एंड ऑन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। ए का मैंने समझा दिया, बी हम देख लेते हैं पहले। डिपेंड्स बोथ ऑन, देखो अब मैंने आप लोगों को बता दिया बोथ तो पहले आना चाहिए, तो इसकी इसकी वजह से बोथ आएगा, बोथ तो आएगा, डी और ई भी गलत होगा क्योंकि इससे बोथ आ ही नहीं रहा, ठीक है। और बल्कि इसमें बोथ आ रहा है, बोथ डिपेंड्स ऑन। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए, हम पढ़ लेते हैं, व्हाई इज द प्लेसमेंट ऑफ बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम ग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। But the amount of heat that falls on Earth's surface depends both on the length of the period of daylight as well as. This is the same as this one, ठीक है, but यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, as well as, तो ये भी गलत है, ठीक है, because ये conciseness करेंगे। Moving on to D. D says, but the amount of heat that falls on Earth's surface both depends. अच्छा, इसमें both जब यहाँ पे depend से पहले आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि दो चीजें डिपेंड करती है ऑन लाइट एंड डे लाइट, लाइट एंड इंसिडेंस ऑफ द एंगल। बिकॉज देखो अगर आप पढ़ते हो, द रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द सन हैज बीन वेरी नियरली कांस्टेंट फॉर मिलियंस ऑफ years, but the amount of heat that falls on earth's surface both depends on the, यहाँ पे दिस बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ग्रामेटिकली दिस सेज कि कोई दो चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं लेंथ पे और एंगल पे, तो हमेशा डिपेंड्स के बाद आना चाहिए कि डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, दो फैक्टर्स उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, तो ये गलत है, तो इसलिए ये भी गलत है फॉर द सेम रीजन, ठीक है। आगे में बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही गलत होगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे पैरेललिज्म भी कंप्राइज हो रहा है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Because you simultaneously focus two eyes on an object, employing a sophisticated method of determining distance and perceiving depth, we call our vision binocular. इसको सबसे पहले देखकर यहाँ पे आर आ रहा है, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, तो सारे यू वाले ऑप्शंस कट जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हम आर यूज कर रहे हैं, तो फिर आप इसको यू नहीं लाओगे, ठीक है। अब सी डी और ई में से ऑप्शंस बच गए, ठीक है। लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यस इज राइट आंसर, ठीक है। लेट्स गो टू सी पहले। बिकॉज of our simultaneous focus on an object with two eyes, employing, देखो employing a sophisticated method of, यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम, यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फोकस टू आईज, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बिकम्स दिस ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट टू आईज है, तो हमें टू आईज को सब्जेक्ट रखना है बिकॉज हम बाइनोक्यूलर विजन की बात करें। दिस इज सी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो व्हेन यू रीड द सेंटेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस आ रहा है सेंटेंस का, ठीक है। जब हम डी पढ़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ आर साइमल्टेनियसली फोकसिंग, ये तो गलत ग्रामेटिकली है, तो is right answer because we simultaneously focus two eyes on an object, employing a sophisticated method of determining distance and perceiving depth, we call a vision binocular. So इसका आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, everyone read and tell me the right answer.
ओके, यस, ए बोल रहे हैं सब, ठीक है। यस, ए इज राइट आंसर। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वे अलार्म इंजीनियर्स ट्राइड बट फेल्ड टू कीप, यस, ट्राइड बट फेल्ड इन देयर कीपिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हैड ट्राइड बट वर फेलिंग इन कीपिंग, रॉन्ग। क्योंकि क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखो हैड ट्राइड बट वर फेलिंग इन कीपिंग, दिस इज वेरी ड्रैग्ड ऑन, ठीक है। वर ट्राइंग बट हैविंग फेल्ड टू कीप, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वर ट्राइंग बट दे हैड फेल्ड इन कीपिंग, जब ये पहला ऑप्शन कंसाइज होकर सेम चीज पोर्ट्रे कर रहा है, सो व्हाई गो फॉर द लॉन्गर ग्रामेटिकली कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, ठीक है। इसलिए फोर का आंसर ए है। मूविंग ऑन टू 5, लेट मी नो द आंसर्स। ओके, डी। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे सेंटेंस के बीच में देयरफॉर यूज हो रहा है तो कॉमा यूज नहीं होगा, सेमीकोलन यूज होगा। बिकॉज आपका जो है ना, अलीना ने आप लोग को बताया होगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आप सेंटेंस के बीच में इसको विद कॉमा यूज नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड ए बी एंड सी कट गए, ठीक है। डी ए नहीं पढ़ लेते हैं। डी में क्या बोल रहे हैं, थर्मोस्टैट्स देयरफॉर दे रेज और लोअर देयर ओन टेम्परेचर्स बाय सीकिंग और फ्लीइंग वार्मथ, ठीक है। और इधर बोल रहे हैं कि इधर बोल रहे हैं कि देयरफॉर दे रेज और सीक देयर sorry, the body heat of reptiles and amphibians is not regulated by internal thermostats. Therefore, the raise or see lower their own temperature. In that they seek or flee. देखो ये बहुत गलत नहीं लग रहा? In that they seek or flee want. ये सही लग रहा है ना, by seeking or fleeing, कि वो कैसे करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि वो वार्मथ को फ्ली करते हैं और उस तरीके से वो अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं और कम करते हैं। सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, टेल मी द आंसर। सबको लॉजिक समझ आ रही है ना, बिकॉज जाय टोल्ड मी कि आप लोग को इसमें बहुत मसला हो रहा है ग्रामर में, सो मेक श्योर कि आप लोग को लॉजिक समझ आ रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा देखो, अगर हम बी करते हैं ना, तो देखो एवरीवनस रॉन्ग, एवरीवनस रॉन्ग, ई इज राइट आंसर, यस शकील। देखो, देन बी इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। मतलब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज देन भी आपके पर्पस को सर्व करता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद भी कॉमा तो आएगा, सही है। तो यहाँ पर व्हाट यू डू इज कि देखो, अगर आप बी बोलते हो ना, तो until about 10,000 years ago human had lived almost exclusively as hunters and gatherers, harvesting wild plants and animals, ठीक है। फिर फिर क्या, people then begin टू कल्टिवेट, देखो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस दो अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज कॉमा से हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अलग नहीं कर सकते। गिव मी अ सेकंड, एक मिनट गाइस। ओके, यस, सही है। तो देखो यहाँ पर दीज आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, ठीक है। until about 10,000 years ago human had lived almost exclusively as hunters and gatherers harvesting wild plants and animals, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद नया सेंटेंस यहाँ से शुरू है, people then began to cultivate domestic plants। तो आप इन दो सेंटेंसेस को कॉमा से ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो बी करेक्ट आंसर नहीं है। और यहाँ पे ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू कैन नॉट you cannot use this without with a comma, ठीक है। Okay, so
Moving on to question number 7. Read the question and let me know इसका आंसर क्या होना चाहिए. These are these then and therefore these are known as transitions. So these are not the subordinating conjunctions. I mixed it up. वो these are known as transitions. उसका एक और नाम होता है subordinating something, which I forgot. Subordination something. But these are called transitions, ठीक है? And इसको आप बगैर comma के साथ use नहीं कर सकती. Use it with a full stop or at the beginning of a sentence or with a semicolon, ठीक है? Question number 7, read करो and tell me the answer to this. Okay, 7 ka everyone's saying B या E. Okay, let's read it. In 1777, when news reached okay, when new okay, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा मैं skip कर रही हूँ, ठीक है? His daughter Sybil rode 40 miles through the night so that the soldiers of her father's regiment had been alerted to the danger. ठीक है? तो A क्या है? So that ये देखो यहाँ पे had been alerted नहीं हो सकता because वो travel कर रही है तो वो alert करेगी. तो had been does not make sense because यहाँ पे उसने राइट किया था तो had been नहीं हो सकता, past tense नहीं हो सकता, उस वक्त के लिए प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. तो ए कैन नॉट बी द राइट आंसर. कि आप रीड भी करो तो दैट डज नॉट मेक सेंस. ठीक है. बी, सो दैट द सोल्जर्स ऑफ अ फादर्स रेजिमेंट मे बी अलर्टेड. मे बी नहीं होगा बिकॉज शी वाज ट्रैवलिंग. ये यहाँ पे लैंग्वेज वाइज डज नॉट मेक सेंस. ठीक है. Alerting the soldiers of her father's regiment to the danger. This is the right answer. Let's go to D and E. ठीक है. And his daughter Sybil rode 40 miles through the night and alerting the soldiers of her. यहाँ पे alerted होना चाहिए था अगर ये correct answer होता तो. अच्छा ये for alerting the soldiers of her father's regiment to the danger. अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग. यहाँ देखो, his daughter Sybil rode 40 miles through the night for alerting the soldiers of her father's regiment to the danger. यहाँ पे to नहीं आना चाहिए था. To alert the soldiers. For alerting the soldiers इस sentence के साथ sense नहीं बन रहा. आप लोग पूरा sentence read करो कि his daughter Sybil rode 40 miles through the night for alerting the soldiers of her father's regiment to the danger. और अगर मैं C option करूँ तो मैं पढ़ती हूँ कि his daughter Sybil rode 40 miles through the night alerting the soldiers of her father's regiment to the danger. सही है. यहाँ पे for is a cause effect की रिलेशन. लेकिन यहाँ पे the cause is this and the effect is this. कि cause था कि उसको alert करना था and effect था कि वो 40 miles राइट करा. यहाँ पे for sense नहीं बन रहा अगर आप sentence में use करते हो तो. is also eliminated. ठीक है. Is that clear to everyone? Question number 8 पढ़ते हैं. Question number 8 का आंसर बताओ मुझे. हसन आपका कैमरा, हसन और हसन आपका कैमरा ऑन. Question number 8. E. Okay. E. Okay, Mosia E. Okay, E is the right answer. Okay, let's read this. 200 million years ago, during the Jurassic period, all of the land area on Earth found in one large continent called Pangaea, which eventually broke apart through. ठीक है. तो यहाँ पे this serves as a fragment, which is wrong. ठीक है. A is wrong. ठीक है. यहाँ पे it says कि during the Jurassic period, one large continent in which all of the land area on Earth and it eventually broke. ठीक है. तो यहाँ पे मसला क्या है. यहाँ पे मसला ये है कि देखो 200 million years ago during the Jurassic period, one large continent in which all of blah 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 and it eventually broke apart. देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो द थिंग इज, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो रही है सेंटेंस पर कि बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि अब जब ई पढ़ते हैं ना तो ई में हमारे पास क्लैरिटी आती है. ई सेज 200 million years ago, during Jurassic period, all of the land on Earth was found in one large blah blah blah, which eventually broke apart. ठीक है, तो that makes more sense क्योंकि B is right as well, लेकिन B में बहुत confusion हो रही है. ठीक है, सी ई में एक फ्लो आ रहा है तो ई इज राइट आंसर, बी इससे सही नहीं है. सी क्या है, वन लार्ज कॉन्टिनेंट ब्ला 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 विच. ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग कि यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही, कंफ्यूजन आ रही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है, वन लार्ज कॉन्टिनेंट was found and यहाँ सेम थिंग. यहाँ पे देखो प्लेसमेंट सही है क्लॉजेस की, ई में प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है क्लॉजेस की कि ऑल ऑफ द लैंड वाज फाउंड एंड देन विच. ठीक है, तो ये आपका सेंस बन रहा है. यहाँ पे इधर उधर जा रही है, पूरे आइडियाज इधर उधर जा रहे हैं. ठीक है, तो एट में इज राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का. ओके मैं अभी आंसर नहीं बता रही इनकी. लेट्स, ओ सॉरी, आई फॉरगॉट ई. देख लो सारे ऑप्शंस इफ यू एनी ऑफ यू थिंक इट्स ई. Acha, let's go through all of these options. In 1990, the Fish and Wildlife Service has placed a northern spotted owl on the threatened species list, a native of the Pacific Northwest forest. टच रूल वायलेट हो रहा है. ये जो ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये किसको डिस्क्राइब करिए, ये ये डिस्क्राइब करिए नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल को. इट शुड बी प्लेस्ड beside it. वरना ये ऐसा लग रहा है ये थ्रेटेंड स्पीशीज लिस्ट को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, इज नॉट द राइट आंसर. बी कह रहा है द फिश एंड वाइल्ड सर्विस प्लेस इन नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, अ नेटिव ऑफ द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज. इसमें बिल्कुल टच रूल सही से आ रहा है बिकॉज नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल को डिस्क्राइब करके और फिर वो आगे बढ़ रहा है. ठीक है, सी क्या बोल रहा है, अ नेटिव ऑफ पैसिफिक नॉर्दर्न फॉरेस्ट. अच्छा, in 1990, a native of Pacific Northern Forest, the Fish and Wildlife Service placed the northern spotted owl on the. अच्छा, ये बात करें 1990 नेटिव ऑफ पैसिफिक नॉर्दर्न फॉरेस्ट. ठीक है, जो कि द फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, ठीक है, उसने प्लेस किया था नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल को. दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. इसमें तो बहुत गड़बड़ हुई है. ठीक है, सी इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसमें शुरू में प्लेस कर दिया. डी में क्या बोल रहे हैं, इन 1990 द नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल हैज बीन प्लेस्ड ऑन द थ्रेटेंड स्पीशीज लिस्ट बाय द वाइल्ड by the Fish and Wildlife Service, which is a native of Pacific Northwest Forest. इससे क्या डिस्क्राइब हो रहा है, इससे डिस्क्राइब हो रहा है, सॉरी, इससे डिस्क्राइब हो रहा है फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, लेकिन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं नॉर्दर्न आउल को. ठीक है, तो इससे जो है ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर. ई क्या है, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, अ नेटिव. अच्छा, ऑप्शन में डी देख लेते हैं. 1990 द नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, अ नेटिव ऑफ द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट फॉरेस्ट प्लेस्ड ऑन द थ्रेटेंड स्पीशीज लिस्ट. देखो यहाँ पे इज होना चाहिए था, या वाज, सॉरी वाज होना चाहिए था क्योंकि 1990 की बात हो रही है. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. आंसर बताओ इसका. ओके, यू गाइस आर सेइंग कि इसका आंसर बी है. ठीक है, व्हिच इज राइट आंसर. ठीक है, लेट्स गो थ्रू दिस. इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये नहीं पढ़ी मैं. ठीक है, public places such as theaters, restaurants, shops and banks had installed electric lighting, but electricity was in fewer than 1% of homes and lighting still provided mainly by candles or gas.
इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि यहाँ पर ये कॉज है कि इलेक्ट्रिसिटी 1% होम में थी, और इसका इफेक्ट ये है कि लाइटिंग जो है वो कैंडल्स और गैस से प्रोवाइड होती थी। तो यहाँ पे एंड जो है ना, ये दोनों आइडियाज को ऐड कर रहा है। लाइटनिंग का मतलब है रोशनी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उन घरों में, इस वजह से रोशनी जो है ना वो कैंडल्स या गैस से प्रोवाइड होती थी, ठीक है। बी में क्या हो रहा है कि फिर देखो, फिर आ रहा है कि बट इलेक्ट्रिसिटी वाज इन फ्यूअर देन 1% ऑफ होम्स वेयर लाइटिंग वाज स्टिल, यस। तो जहां पे 1% से कम घरों में इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है, उसके अलावा लाइटिंग जो थी ना वो हर जगह गैस और कैंडल से प्रोवाइड होती थी। बी इज राइट आंसर। सी में क्या मसला है, सी में मसला है कि बट फ्यूअर देन but fewer than 1% of the homes that had electricity where lighting was still being। देखो यहाँ पे that यूज हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी 1% से कम थी, और फिर यहाँ पर उन्होंने वापस वेयर यूज कर दिया। तो यहाँ पे ये मसला आ रहा है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब दैट आ रहा है तो वेयर नहीं आना चाहिए था, ठीक है, दोनों मॉडिफायर्स है, ठीक है। डी में क्या है कि बट fewer than 1% of homes with electricity having lighting that was still यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि फ्यू देन इलेक्ट्रिसिटी, उसके आगे वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हैविंग लाइटिंग दैट वाज स्टिल, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। ई में क्या है, फ्यूअर देन 1% ऑफ द होम विद इलेक्ट्रिसिटी वेयर लाइटिंग हैड स्टिल बीन प्रोवाइडेड, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था वो स्टिल बीइंग प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे ये हैड स्टिल का मसला है, ठीक है। और बी में क्या है, वेयर लाइटिंग वाज स्टिल बीइंग प्रोवाइडेड, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताओ मुझे। ओके, 11 का आंसर यस इट्स ई। व्हाई? बिकॉज देखो, बट बीइंग्स विद एज कॉम्प्लेक्स एंड सटल सोशल लाइफ एज अस, तो पहले सोशल लाइफ आना चाहिए ना, पहले जो कंपेयर कर रहे हो वो आना चाहिए कि सोशल लाइफ एज कॉम्प्लेक्स एज अस, ठीक है। तो ए तो गलत हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड सटल सोशल लाइफ जस्ट लाइक अस, तो देखो जस्ट लाइक अस इज वेरी इनफॉर्मल, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हो, बट बीइंग्स विद कॉम्प्लेक्स एंड सटल सोशल लाइफ जस्ट लाइक अस, तो ये सर्व नहीं करा सही से जो इसका पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे एज होना चाहिए था, बिकॉज जस्ट लाइक इज वेरी इनफॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद बट बीइंग्स विद एज कॉम्प्लेक्स एंड सटल सोशल लाइफ एज अस, नहीं, पहले सोशल लाइफ आना चाहिए था, फिर बाद में उसका कंपैरिजन आना चाहिए था, ठीक है। विद सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स एंड सेटल जस्ट एज आवर्स, सेम थिंग यहाँ पे एज होना चाहिए था, बिकॉज ये भी इनफॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे है बट बीइंग्स विद सोशल लाइव्स एज कॉम्प्लेक्स एंड सटल एज आवर्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया सबको ये? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। This is a very important and a tricky question comparatively, so take your time on this. Okay, I hope आप लोग मुझे आंसर की से देख कर ना बता रहे हो। Okay, Laiba says it's B, do these. Okay, let's go through all of these. In the 16th century, the forests were destroyed in Britain, which meant not only a shortage of the important building material of the time, but also a fuel shortage. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, सही है ए आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं कि which meant not only a shortage of the most important material of time, but also a fuel shortage, ठीक है, इसमें मसला नहीं है। बी में क्या है, in the 16th century the forests in Britain were destroyed, which meant a shortage not only of the most important building material but also a fuel shortage। अगर हम ये ऑप्शन यूज करते ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था but also of fuel, because हमने shortage पहले यूज कर लिया है, तो हम कह रहे हैं which meant a shortage not only of बिल्डिंग मटेरियल बट ऑल्सो ऑफ फ्यूल, लेकिन यहाँ पे फ्यूल के साथ भी शॉर्टेज यूज हो गया है ना,
तो शॉर्टेज फिर नॉट ओनली के बाद आना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक के साथ शॉर्टेज को साइन कर रहे हो, दूसरे के साथ दोबारा कर रहे हो। लेकिन अगर आप शॉर्टेज को पहले कर दो फिर आप अगर बोलो नॉट ओनली, और फिर दोबारा अगर आप शॉर्टेज बोलो तो पैरेललिज्म अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बी इज नॉट द राइट आंसर। सी में क्या बोल रहे थे, फॉरेस्ट वर डिस्क्राइब, हाँ लाइव, आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाई इट्स नॉट ए, एंड ने बताती हूँ। सी में क्या बोल रहे हैं कि द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इन ब्रिटेन, मीनिंग अ शॉर्टेज, अगेन सेम थिंग कि नॉट ओनली से पहले शॉर्टेज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर द थिंग इज कि यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट मेंट नॉट ओनली अ शॉर्टेज। यहाँ पे खामा खा के लंबा हो रहा है, द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इन ब्रिटेन विच मेंट। अगर हम उस वर्ड डिस्ट्रॉयड को हम एक नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है, सो प्लस ये देखो इससे कंसाइज हो जाएगा, तो डी इज द बेटर ऑप्शन। ई में क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मेंट अ शॉर्टेज नॉट ओनली, सेम थिंग है जो मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्यूल होता सिर्फ तो फिर ये आंसर सही होता ई। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑन दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर बी। ठीक है, ब्रिटेन्स फर्स्ट आइस एज केव आर्ट। अच्छा, ये मुझे इसका आंसर बताओ पहले आपको। डी। अच्छा देखो, सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करो कि जब वो यहाँ पे वर या वॉज डिसेंट डिस्कवरी, किसकी बात कर रहे हैं। डिसेंट डिस्कवरी की, एज केव आर्ट की, राइट? इज इट सिंगुलर या प्लूरल? इट्स सिंगुलर। ये जो हाइफन के बाद है, दैट सर्व्स एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तब इसको अभी इग्नोर करोगे। लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, तो ए और बी तो गलत है। ठीक है, फिर वो केव सिंगुलर नहीं है, आर्ट सिंगुलर है। वो आर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एज केव को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, वो एज केव के आर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन फर्स्ट आइस, ये मैं पढ़ नहीं रही बार बार। ठीक है, फर्स्ट आइस एज cave art was a recent discovery that a team of archaeologists in a cave at ठीक है, तो यहाँ पे दैट जब आ रहा है ना, तो वो मॉडिफायर के सेंस में आ रहा है। तो जब आप दैट यूज करते हो तो आगे सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है, लेकिन जब आप बाय यूज करते हो तो हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्कवरी की किसने थी। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप पढ़ो तो सेंटेंस फ्रेगमेंट में आ जाता है कि देखो, वाज अ रीसेंट डिस्कवरी दैट टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन अ टीम ऑफ क्रेसवेल क्रेग्स इन सेंट्रल इंग्लैंड। आगे भी कुछ होना चाहिए ना, दैट के बाद भी कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डिस्कवरी के साथ बाय होगा। ठीक है, फिर लेकिन अगर मैं यहाँ पे वॉज हटा के सिर्फ रिसेंट डिस्कवर्ड करूँ तो अगेन ये आपका फ्रेगमेंट बन जाएगा कि देखो, ब्रिटेन फर्स्ट आइस एज केव आर्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे भी कॉमा आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ मॉडिफायर है। क्या उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि जो आइस एज केव आर्ट है वो डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये दिस बिकम्स अ मॉडिफायर, और फिर ये फ्रेगमेंट बन जाएगा सेंटेंस पूरा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसका आंसर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Sony, Marvi, Bhumika, Alyan, can you guys also please participate? Abdul Wajid, Abdul Jabbar, Aisha. Aisha, I really want your participation because ये आपकी first class है. Okay, बहुत सारे answers हैं इसमें. ठीक है, and this was one of the most confusing sentence improvement questions जो मैंने solve किया हूँ आज तक. इसका आंसर E है. ठीक है, let's go through each of these options. ठीक है, throughout the first half of the 19th century, many businesses remained open on Christmas. ठीक है, उसके बाद जो sentence है ना, and so many people doing their Christmas shopping on commercial on Christmas day that commercial streets. देखो यहाँ पे जब आप and लेकर आते हो ना, देखो ये दोनों आपके वो हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो और ये जो सो है ना, ये आपका कॉज इफेक्ट है कि सो मेनी पीपल वर डूइंग दिस, तो यहाँ पे एंड के साथ आप सो का नहीं ला सकते। ठीक है, तो ए तो गलत हो गया। ठीक है, एंड मेनी पीपल डूइंग द क्रिसमस शॉपिंग ऑन क्रिसमस डे दैट कमर्शियल स्ट्रीट्स
वर ऑफन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना बेसिकली द सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी में क्रिसमस डे पर क्रिसमस शॉप्स खुली होती थी, ठीक है। एंड इस वजह से जो लोग हैं वो क्रिसमस शॉपिंग क्रिसमस डे पर करते थे उन स्ट्रीट्स पर जो पहले नियरली इम्पॉसिबल थी। समझ आया? तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, इससे सो का होना बहुत जरूरी है। इससे ये तीनों गलत हो गए। और दिस इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे आपका कॉलन सेमी कॉलन भी यूज हो रहा है, तो आपका सेंटेंस भी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Should be the answer of question number 3. B. Okay. Yes, B is the right answer. Okay, let's go through these options. Before the advent of industrial fishing, some regions of the ocean were too distant or too deep for fishers to reach, with the fish living there to remain untouched. यहाँ पे टू की वजह से सेंटेंस खराब हो रहा है। अगर यहाँ पे विद द फिश लिविंग देयर रिमेनिंग अनटच्ड होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन टू से यहाँ पे इंफिनिटिव वो इंफिनिटिव यूज हो रहा है, यू गाइस हो रहा है कि टू इज एन इंफिनिटिव, ठीक है। टू रिमेन अनटच्ड फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी क्या है? were too distant or deep for the fishers to reach, so the fish that lived there remaining untouched. ये remained होना चाहिए था ना, या remained होना चाहिए था, तभी से होता remaining गलत हो रहा है फिर यहाँ पर। तो डी, फिर डी क्या कह रहा है? and so the fish that lived there remaining, again were होना चाहिए था या remained होना चाहिए? तो were remaining होना चाहिए था या remained होना चाहिए, ठीक है। ई क्या है? ई बोल रहा है were too distant or too deep for fishers to reach, and so with the fish that lived there remaining untouched. तो ये भी गलत है बिकॉज ये विद के साथ आ रहा है, तो आपका आगे बिल्कुल भी सेंसिबल रिमेनिंग भी आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है? so the fish living there remain untouched, ठीक है। सो ये वाला सही है बिकॉज इसमें आपका रिमेनिंग के बाद कुछ आना चाहिए था। रिमेनिंग वर रिमेनिंग अनटच्ड होना चाहिए, रिमेन्ड होना चाहिए, रिमेनिंग सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग बेड पे लेट के ना लें, बिकॉज आप लोग इट्स बेटर कि आप लोग हर इवन इफ लैपटॉप या फोन पे खोलकर just try writing the reasoning of each of the options that I'm saying giving, ठीक है। because आप लोग जब ये बाद में करोगे ना रिवाइज, तो आप लोग को बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा चलो, आई एम जस्ट जनरली सेइंग कि ट्राई करो कि ना करो ऐसे, बट बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू गाइस कि आप लोगों को तो याद ही नहीं रहेगी रीजनिंग। कोशिश करा करो, लिख लिया करो एक एक दो दो वर्ड की, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस वाज नॉट जस्ट फॉर शकील बाय द वे, दिस इससे पहले भी किसी ने खोला हुआ था, एंड आई थिंक ही इज नॉट हियर इन क्लास एनीमोर। जितने भी लोगों ने कैमरा खोला है सब बेड पे लेटे हुए होते, तो मेक श्योर यू डोंट डू दैट, दैट इज हार्मफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। चलो, ड्रॉ इज सेइंग डी, एनीवन एल्स? A, okay. Okay. Because she believed strongly that education was important for men as for women, was for women as for men. Don't you guys think यहाँ पे ये होना चाहिए था it is as important for women as it's for men? Because यहाँ पे comparison आ रहा है ना. Don't you guys think that? It should have been कि yes, C is the right answer. Good work, Ahmed. ठीक है. So देखो यहाँ पे अगर आप A करते हो ना, because she believed strongly that education was important for women as for men, तो यहाँ पर this becomes a question mark. यहाँ पे as क्यों बोला है, comparison क्यों किया? It should have been was as important for women as for men, या फिर was important for women and men.
ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है तो कंपैरिजन का यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना एज इम्पोर्टेंट एज स्ट्रॉन्ग एज, हमेशा हम पहले भी एज यूज करते हैं, तो ए तो गलत हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन एज इम्पोर्टेंट एज फॉर women एज फॉर men। ठीक है, बिकॉज ऑफ बिलीविंग ये, बट बिलीविंग स्ट्रांगली, शी बिलीव्स स्ट्रांगली, क्या बिकॉज, अच्छा आप कह रही हो कि बिकॉज आना चाहिए। देखो जैसे देखो यहाँ पर ना बिकॉज इज एन अननेसेसरी थिंग, कि अगर मैं कहती हूँ कि बिलीविंग दैट आई हैड टू पास माई एग्जाम, आई स्टडीड आई स्टडीड ऑन टाइम, ठीक है, लेकिन मैं बोलती बिकॉज आई बिलीव आई हैड टू पास माई एग्जाम, दैट इज अननेसेसरी। बिलीविंग से आप स्टार्ट कर सकते हो सेंटेंस, ठीक है, बिलीविंग आई हैड टू पास माई एग्जाम, आई स्टार्टेड स्टडीइंग ऑन टाइम, ठीक है, या बिकॉज आई बिलीव्ड दैट इज लॉन्ग एंड अननेसेसरी, आप बिलीविंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे एज नहीं है, ए तो गलत है। ठीक है, ई भी गलत हो गया है बिकॉज यहाँ पे भी एज नहीं है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, ये भी देखो कंफ्यूजिंग है। बिकॉज ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, प्लस यहाँ पे आप वॉज होना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली दैट एजुकेशन वॉज एज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वॉज तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वॉज तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। इन बिलीविंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन एज, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा। बिलीविंग स्ट्रांगली दैट एजुकेशन वाज एज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन एज फॉर मेन, फिर आगे कंटिन्यू। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? कि यहाँ पे कंपैरिजन आप करो तो एज होना तो बहुत जरूरी है, तो ए और ई तो कट ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में वॉज नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। The eruption of Mount Vesuvius. Okay, let's read it Mount only. The eruption of mountain AD 79 was sent a column of tephra, dust, smoke, and I don't know how to pronounce pumice, I think, nearly 17 miles into the air. Acha, into the air, so that it covered the city of Pompeii with over 8 feet of pumice. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अच्छा, लाइवर से डी, लाइवर दे क्यों आएगा यहाँ पे? इरप्शन तो एक ही है, और मतलब ये, सॉरी, टेफ्रा की बात हो रही है तो ये तो सिंगुलर चीज है। ये दिस इज व्हाट टेफ्रा इज मेड अप ऑफ। ठीक है, ये अलग से बोलते ना तो डी आंसर होता। प्लस यहाँ पे आंसर आपका ए है। वाई? बिकॉज वो यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं कि टेफ्रा के होने की वजह से जो है ना वो, अच्छा देखो, मैं बताती हूँ आप लोग को व्हाई इज इट ए। देखो, अगर आप लोगों ने बाकी ऑप्शन, एंड देखो अगर आप लोग ये बोलते हो ना एंड सो कवर्ड द सिटी ऑफ पोम्पाई विथ ओवर 8 फीट, लेकिन हम यहाँ पे टेफ्रा की बात करें तो वी नीड टू ब्रिंग इट बैक एंड आइडेंटिफाई विद इट। ठीक है, देखो एंड कवर्ड द सिटी, तो एंड जब आप यूज करते हो ना तो कंफ्यूजन हो जाती है कि इरप्शन ने कवर किया है या टेफ्रा ने कवर किया है। सही है, तो आपको जो लास्ट यूज नाउन है ना उसको यूज करने के लिए आपको इट यूज करना पड़ेगा। दे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, और प्लस आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझा रहे हो। इज दैट क्लियर? देखो लाइबा, ये बात सुनो एक सेकंड। यहाँ पर ना ओके, लेट्स से माय बॉक्स, यस यू राइट। देखो शकील, शकील लेट मी एक्सप्लेन टू लाइबा। देखो, माय बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स, पेन्स एंड इरेजर्स, आगे वॉज होना चाहिए या वर लव्ड बाय एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक लाइबा? Why was? Because ये जो पार्ट है ना लाइबा, दिस इज एडिशनल, दिस इज जो हाइफन होता है ना, दिस सर्व्स एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगेन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लिखने के बहुत तरीके होते हैं। ब्रैकेट्स लिख सकते हो आप हाइफन यूज कर सकते हो, आप मॉडिफायर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो द मेन सब्जेक्ट ओवर हियर इज बॉक्स एंड द मेन सब्जेक्ट ओवर हियर इज टेफ्रा। वो टेफ्रा को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि डस्ट स्मोक, वो इससे बनता है। समझ आया आपको?
ठीक है, so इसलिए इट होना चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. 6 का ए नहीं हो सकता बिकॉज वो पास्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, हैड की बात कर रहे हैं, तो इफ दे डेवलप न्यूरल्स हो सकता है डेवलप न्यूरल्स. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अब मैं इसलिए आई एम मूविंग फास्ट बिकॉज हमें कंप्लीट करना है लाइक हाफ ऑफ इट एंड देन वी हैव टू डू क्लोज पैसेजेस. ठीक है, सी क्या है कि टू सर्वाइव द पीपल नोन एज पैलियो इंडियंस हैड टू बी रिसोर्सफुल एंड रेजिलिएंट. The ability to survive only by developing hunting and gathering techniques suited to the changing environment. This does not make sense because हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनको resilient and resourceful होना था. ठीक है, how by being able to survive by developing. ठीक है, developing hunting and gathering techniques. अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, that they are able to survive only. देखो यहाँ पे भी fragment हो जाएगा अगर हम that use करेंगे तो. ठीक है, यहाँ पे भी fragment हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे बी जो है ना, बी में हम कह रहे हैं कि सर्वाइव करने के लिए पैलियो इंडियंस को रिसोर्सफुल और रेजिलिएंट होना जरूरी था. ठीक है, एंड दे वर एबल टू सर्वाइव ओनली बाय डेवलपिंग हंटिंग एंड गैदरिंग टेक्निक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं. Around 230 million years ago, the west coast of what is now Europe and the bulge of northwestern Africa began to collide slowly with the east coast of North America. इसका आंसर क्या होगा? B, yes, B is the right answer. ठीक है, देखो around 230 million years ago, the west coast. I mean, I can see your improvement by the way. Good work. Around 230 million years ago, the west coast of what is now Europe and the bulge of northwestern Africa began to collide slowly with the east coast of North Africa. The land masses coming together to form the supercontinent. ठीक है, अब यहाँ पे वो इफेक्ट बता रहे हैं. ठीक है, एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि began to collide slowly with the east coast of North Africa, the coming together of land masses to form. देखो यहाँ पे the coming together is very, what do you say, sounds very incorrect. ठीक है, यहाँ पे that is not appropriate. A is the wrong answer. पे C में क्या बोल रहे हैं, and with the land masses coming together, that is also not correct because देखो यहाँ पर you telling the effect, और comma आप use करो तो you don't need to use and, because यहाँ पे and Oxford comma होता है. यहाँ पे देखो and अगर आप यूज करते हो ना, सेंटेंस क्या बन जाएगा कि द वेस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट इज नाउ यूरोप एंड द बल्ज ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बिगन टू कोलाइड स्लोली विद द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड विद द लैंड मासेस कमिंग टुगेदर. तो दैट इज नॉट राइट. आप उसका इफेक्ट बता रहे हो तो यू नीड टू यूज एंड को यूज नहीं करोगे यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में मसला क्या है, इन दोनों में यही सेंटेंस फॉर्मेशन का मसला है. सुपर कॉन्टिनेंट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कमिंग टुगेदर, दैट इज वेरी इररेलेवेंट. ठीक है, और फॉर्मिंग ए सुपर कॉन्टिनेंट बाय द लैंड मासेस कमिंग टुगेदर. आपको यहाँ पे लैंड मासेस की पहले बात करनी है बिकॉज ये लैंड की बात हुई है, लैंड मासेस की बात हुई है. ठीक है, तो यू दिस इज बेसिकली द मॉडिफायर. ठीक है, और इसको आपको यूज करने के लिए लैंड मासेस पहले यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सुपर कॉन्टिनेंट पहले यूज कर लेते हो, दैट बिकम्स रॉन्ग. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इसका आंसर बताओ. Yes, A is right answer. Why? Let's go through all other options. As executives of the newspaper, seeking that they make the paper more competitive and to broaden. अब देखो यहाँ पर ना parallelism का मसला आ गया है कि seeking that they make the paper more competitive and to broaden. अगर ये यूज होता ना ऑप्शन तो यहाँ पे and broadening होता. सॉरी, यहाँ पे होता and broaden, लेकिन यहाँ पे टू यूज हो रहा है तो यहाँ पे टू का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इससे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे दोनों का टू का होना बहुत जरूरी है टू मेक द पेपर मोर कंपैरेटिव एंड टू ब्रॉड. ठीक है, तो बी और ई तो गलत हो गया.
ठीक है. What is C? C is saying as executive of a newspaper seeking to make the paper more competitive and to broaden advertising, they are exploring. देखो this is wrong because इसके ना sentence का मतलब change हो रहा है. हम ये कह रहे हैं कि जो executive है newspaper के वो executive हैं, ठीक है. क्योंकि ये अगर हम ऑप्शन नंबर सी रखते हैं तो फिर तो ये सीकिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट मॉडिफायर बन जाएगा ना. तो इसका मतलब हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव है इसलिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं एडिशन को. लेकिन हमें ये दिखाना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं सारे एडिशन. ठीक है. तो डी क्या है? विद एडिशंस. एडिशंस अच्छा, विद एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द न्यूज़पेपर सीकिंग टू मेक द पेपर मोर. देखो ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पर आपका सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो तो फिर ये फ्रेगमेंट हो जाता है कि विद एग्जीक्यूटिव्स with executives of the newspaper seeking to make the paper more competitive, blah blah blah, depend on business related advertising, they are exploring. तो बेसिकली जब executives की बात कर रहे हो ना तो यहाँ पे फिर they जब आप यूज करते हो तो सेंस नहीं बनता यहाँ पे. प्लस यहाँ पे सेंटेंस ए से बेहतर लग रहा है. Does that make sense? Moving on to question number 9 now. Question number 9 कर लेते हैं. Between 1790 and 1860, the United States grew from a small nation of 4 million people, mostly farmers. अब देखो यहाँ पे from आ रहा है तो आगे to आना चाहिए. To become. Perfect. ठीक है. ये तीनों गलत. Why can it not be this? To becoming तो नहीं हो सकता ना, because वो ग्रामर ही सही नहीं बन रही. To becoming one of the words. To become सही है. ठीक है. तो D is right answer. इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? Okay, question number 10. For tens of millions of years, a wide area of rhinoceros species from small hippo-like forms. यहाँ पे again from आ रहा है तो वो wide area की बात कर रहे हैं तो वो explain कर रहे हैं. तो from small hippo-like forms to towering giant होना चाहिए. ठीक है. मतलब ये भी है और ये भी है, right? तो टू तो होगा, A और B तो गलत है. ठीक है. फिर अब ये पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या मसला है. Two towering giants larger than elephants existing in forest. गलत. हम पास्ट की बात करें तो एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता. एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता, एग्जिस्टेड होगा. परफेक्ट. डी इज राइट आंसर. इज दैट करेक्ट? समझ आ गया सबको? ओके. क्वेश्चन नंबर 11. Beginning in 1285, various commissions were set up in London for addressing the problem. अच्छा यहाँ पे again addressing से पहले टू आता है, टू एड्रेस होता है, राइट? तो ए और बी तो गलत हो जाएगा. ठीक है. सी क्या है? टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ coal smoke which complainants had said had infected. ये किसकी बात हो रही है? किसने इफेक्ट किया था? कोल स्मोक ने. प्रॉब्लम ऑफ कोल स्मोक ने किसने किया था? कोल स्मोक ने किया था, राइट? एंड दिस इज अ मॉडिफायर. तो इससे पहले क्या वर्ड आना चाहिए? कोल स्मोक का वर्ड आना चाहिए. ठीक है. तो डीई तो गलत हो गया बिकॉज ये कोल स्मोक की बात करें कि कोल स्मोक ने जो है ना इन्फेक्ट कर दिया था एयर को. तो डी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. ठीक है. और अच्छा अगर हम डी करते हैं ना, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कोल स्मोक ऑफ विच कंप्लेनेंट सेड, तो आप लोग अगर आप ऑफ कह रहे हो तो सेंटेंस देखो क्या हो जाएगा. बिगिनिंग इन 1285 वेरियस कमीशंस वर सेट अप इन. यस, ऑफ नहीं आना चाहिए. बिगिनिंग इन 1285 वेरियस कमीशंस वर सेट अप इन लंदन फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोल स्मोक ऑफ विच कंप्लेनेंट सेड. आप ऑफ जब यूज कर रहे हो ना तो आप ये कह रहे हो कि उसका या उससे. ठीक है. लाइक ऑफ विच, उससे कंप्लेनेंट्स ने कहा. लेकिन आप यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कोल स्मोक which complainants had said has infected and corrupted. Is that clear? Off यहाँ पे गलत आ जाएगा. समझ आ रहा है सबको? C is right answer. Is this clear to everyone? Okay. Last question for this sentence improvement, and then we're going to do one close passage. Over the years, people built more than 100 earthen mounds of various sizes and functions around 6 open plazas. अच्छा, this is an error. This is an error I want to clear. ये पूरा underlined है. ठीक है. So of various sizes and functions around 6 open plazas, some of which remains can still. नहीं, this is not right. इसका होना चाहिए some of the remains of which होना चाहिए, right? तो the remains of some of which can still. Yes, that is the right answer. अब बाकी सारे options देख लेते हैं. Of various sizes and functions around 6 open plazas,
some of the remains of which still to be seen नहीं हो सकता, right? That is wrong. ठीक है, the remains of some comma which can still, remains of some which can, देखो ये grammatically incorrect होगा, ठीक है, the remains of some of which still to be seen, that to वापस आ रहा है, गलत हो जाएगा, the remains of some of which can still be seen, ठीक है, तो is the right answer. Is that clear to everyone? आयशा, आपको समझ आया ये सब? Is there any question you want to ask? Aisha, Arshad. Okay, it's clear. ठीक है. So we're going to move to close passage now. ठीक है, we're going to do one close passage. Okay, let's do this. ठीक है. Okay, पहला वाला read करके मुझे आंसर बताओ आप लोग. यस, सी, बिकॉज देखो, हम ये कहते हैं ना कि एक एक टाइम पर ये हुआ करता था, राइट? सो यहाँ पर क्या होगा कि आईक्यू टेस्ट एट वन टाइम, वन पीरियड होता तो इन वन पीरियड होता, ठीक है, सेंचुरी होता है इन वन सेंचुरी होता, एरा होता है इन एन एरा होता है, टाइम में एट अ टाइम होता है, इन अ टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सी इज राइट आंसर फॉर दिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Moving on to question number 2. An IQ test is therefore to measure thinking ability. I stands, अच्छा बी शकील आपने किसका, अच्छा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहे हो. आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस एंड क्यू फॉर क्वोशिएंट एंड आई क्यू इज देयरफॉर डैश इन न्यूमेरिकल्स. इसका क्या होगा? अच्छा देखो गाइस, आईक्यू स्कोर की बात कर रहे हैं. आईक्यू टेस्ट डिजाइन होता है, आईक्यू स्कोर डिजाइन नहीं हो सकता. आईक्यू टेस्ट कंडक्ट होता है, आईक्यू कंडक्ट नहीं होता, ठीक है. प्रिस्क्राइब तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है. आईक्यू को आप लिखते हो, आईक्यू टेस्ट, आईक्यू के स्कोर को आप लिखते हो, आईक्यू के टेस्ट को डिजाइन और कंडक्ट करते हो. इज दैट क्लियर? इसका आंसर सी है. वो कह रहे हैं कि आईक्यू को आप लिखते हो ना, आईक्यू का स्कोर आप लिखते हो, तो वो डिजाइन तो नहीं करते आप स्कोर, स्कोर तो टेस्ट से डिजाइन होता है या टेस्ट डिजाइन होता है, राइट? तो इसका आंसर रिटन होगा, प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता. कैसे होगा प्रिस्क्राइब? प्रिस्क्राइब तो प्रिस्क्रिप्शन वाली बात आ गई ना. लाइबा आईक्यू का टेस्ट नहीं बोला, देखो आईक्यू बोला है यहाँ पे. आईक्यू के टेस्ट के बाद जो स्कोर आता है ना, जैसे यूनिट होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि जब हम बुखार को टेस्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि थर्मोमीटर डिजाइन होता है, लेकिन हम कहते हैं कि जो बुखार का मतलब जो टेम्परेचर है वो रिटन होता है फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में. यू गेट इट? यूनिट की बेसिकली बात हो रही है या उसकी रिटन फॉर्म की बात हो रही है. इज दैट क्लियर? वाई नॉट बी? कंडक्टेड टेस्ट कंडक्ट होता है ना. आईक्यू कैसे कंडक्ट हो सकता है? आईक्यू स्कोर कैसे कंडक्ट कर सकते हो आप? आईक्यू का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो ना. इज दैट क्लियर निशा? मैं बता रही हूँ. मैं एक सेकंड, लेट मी सर्च एंड टेल, बिकॉज मुझे आईक्यू के क्यू का मतलब नहीं पता. यू गाइस कैन गो एंड रीड क्वेश्चन नंबर 3 टिल देन. बेसिकली देखो, क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब यही है कि इंटेलिजेंस नंबर, बेसिकली और इंटेलिजेंस बट इन अ नंबर फॉर्म, ठीक है. ओके, 3 का एवरीवन इज सेइंग डी. लेट्स रीड 3. Many psychologists used to believe that everyone has a fixed dash of intelligence and that it could be measured in a single test. That everyone has a fixed amount of intelligence, that everyone has a fixed value of intelligence. Everyone has a, देखो intelligence को आप amount नहीं कर सकते हो. आप इंटेलिजेंस को अमाउंट नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को वैल्यू कर सकते हो. उसकी एक वैल्यू होती है. इट्स नॉट टैंजिबल कि आप उसको अमाउंट कर सको, ठीक है. क्वांटिटी इसीलिए नहीं कर सकते, नंबर आप इसलिए नहीं कर सकते. वैल्यू इज समथिंग कि आप उसको एक नंबर, एक वैल्यू मतलब बेसिकली किसी इंटैंजिबल चीज को भी आप दे सकते हो, लेकिन जो बाकी चीज 3 चीजें वो सिर्फ आप टैंजिबल चीजों को दे सकते हो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 3 का आंसर बी हो जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस? बिकॉज नंबर इससे नहीं, बिकॉज इंटेलिजेंट, देखो अच्छा आलिया, अब आपको ये लग रहा है कि मैं कह रही हूँ कि आईक्यू का नंबर क्यों नहीं. देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस.
इंटेलिजेंस को तो अब एक मैं तो ये नहीं कह सकती ना कि ओके आलियान में 50% 50 इंटेलिजेंस है, कैन आई से दैट? आई कैन नॉट, बट आई कैन से कि आलियान की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब बेसिकली वैल्यू इज नॉट समथिंग जो हमेशा एक नंबर फॉर्म में, वैल्यू का मतलब होता है कि बेसिकली ज्यादा है कम है, जरूरी नहीं कि आप उसे नंबर असाइन करो, लेकिन जो बाकी तीन ऑप्शन है वो सब नंबर असाइन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर आलियान? Okay, question number 4 now. The questions were based on what the okay, after 4 का बोल रहे हो ना? The questions were based on what the students were taught and their dash were supposed to reflect how they could use words and numbers. Okay, इसका आंसर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डी, ठीक है। रिप्लाई नहीं हो सकता, देयर रिप्लाईज होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा रिप्लाईज भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो आईक्यू टेस्ट है तो क्वेश्चंस के हमेशा आंसर्स होते हैं, ठीक है। रिप्लाईज जो है ना आपके कॉन्वर्जेशन में मोस्टली होते हैं, क्वेश्चंस के तो आंसर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं और कॉन्वर्जेशन में रिप्लाईज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आंसर्स, इसका आंसर आंसर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Second, we're supposed to reflect how well they could use numbers and words, follow directions and dash problems in a common sense way. इसका क्या होगा? 5 का बी होगा, यस। सॉल्व होगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो आप, ठीक है। सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकता? रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकता? सेम टू ये मत, बट रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज रिजॉल्व का मतलब होता है किसी फाइट को सॉल्व करना, ठीक है। सही है, रिजॉल्व आप किसी फाइट को करते हो, किसी मसले को करते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे मैथ्स वाला क्वेश्चन वाला सॉल्व, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. um Binet thought these dash were useful in separating the intelligent from the dull ones. इसका क्या होगा? अब्दुल वाजिद ए कैसे हो सकता है? यहाँ पे दीज बोला है तो एक से ज्यादा है ना, तो टेस्ट होना चाहिए। ओके आंसर, यस मैंने अभी देखा, दिस इज रॉन्ग, इसका ए नहीं है, इसका बी है। आई करेक्ट दिस बिकॉज कॉमन सेंस ही बन रहा है। शलीना इतना आगे नहीं भागो, लेट मी रुक जाओ सवेरा शलीना, मैं जब पूछूं तब बताना, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्ट, इज देयर एनीवन जिसको लग रहा है कि टेस्ट होना चाहिए और मैं गलत बोल रही हूँ? आई इन्फॉर्म शायद अबाउट दिस कि 6 का जो है वो ए नहीं है, बी है। एंड बाय द वे शकील, आपको पता है कि मैं क्या है, इसको आपने की सामने खोल के रखी हुई है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7. Later he decided to do more. जी जी जरूर सही बात है। Later he decided to do more. He wanted to find out how dash a child was. इसका क्या होगा? IQ टेस्ट से आप स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस चेक करते हैं, ठीक है, तो स्मार्टनेस होगा, ठीक है। और फास्ट, देखो आईक्यू टेस्ट में फास्टेस्ट का क्या, आईक्यू टेस्ट में कोई टाइम थोड़ी होता है। मिच्योर भी नहीं हो सकता, मिच्योर तो बिल्कुल भी नहीं बनता, सेंस एक्टिव भी नहीं बनता, फिजिकल टेस्ट नहीं है, मेंटल टेस्ट है, स्मार्टनेस की बात हो रही है। इजी है ये वाला बहुत, ठीक है। 8 पे मूव ऑन करते हैं। IQ tests were conducted to test the intelligence of children in schools. However, it was later found that some dash who did well in arithmetic tests did poorly on the word questions. चिल्ड्रन, ये तो बहुत आसान है क्लोज पैसेज, क्योंकि सम की बात हो रही है तो चाइल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। एक से ज्यादा की बात हो रही है, बेबीज आईक्यू टेस्ट देते नहीं, और सिर्फ लड़की नहीं देते, लड़कियां भी देती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? There are dash ways of test to find their dash and weaknesses. इसका क्या होगा? Yes, there are many ways. Few ways नहीं, हम many ways बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली फ्यू तो नहीं हो सकता, हम ऊपर बात कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैनी। और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, वीकनेसेस है तो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये बहुत इजी था क्लोज पैसेज, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? रहे सिर्फ हमारे 12 लोग रहे, बट किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। Then I'm going to end the class for today. अच्छा, my question to you guys is कि आज की क्लास के बाद इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्लियर टू यू गाइस बेटर है थोड़ा सा? यस निशा, आपने मैम लिखा है। मैम कॉम्प्रिहेंसिव यस करना था, बट आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस टुडे, सो आई चेंज माय माइंड। ओके, एक सेकंड, निशा ने क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोला? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस, मैम बहुत टफ था टू। कौन ये वाला टू? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? अच्छा, डुअल पैसेज की बात करो आप लोग, सॉरी। अच्छा, निशा इसकी बात करिए, आप लोग उसकी बात करिए। यस दैट वाज डिफिकल्ट एंड दैट इज व्हाई मुझे को कराना है आप लोग को। मैं करवाऊंगी, फिक्र नहीं करो, आई डू इट ऑन सैटरडे। ओके, निशा कह रही है ये वाला सवाल, ठीक है निशा देखो, एंड आईक्यू इज देयरफॉर, अगर यहाँ पे देखो ये आईक्यू के स्कोर की बात करें, ठीक है, कि आईक्यू का स्कोर न्यूमरल्स में डैश हुआ जाता है। आईक्यू का स्कोर डिजाइन नहीं कर सकते ना आप, आईक्यू के टेस्ट को आप डिजाइन कर सकते हो, आईक्यू के स्कोर को आप लिखते हो या रिकॉर्ड करते हो, प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर वाला है, वो तो गलत है। देखो आईक्यू का टेस्ट अगर यहाँ पर होता ना तो फिर बी ए और बी दोनों सही होते हैं। सही है निशा, यहाँ पे आईक्यू की बात हो रही है, स्कोर की बात हो रही है, तो इससे रिटन होगा। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? ओके, कोई और सवाल है किसी के? आयशा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शुड एंड द क्लास? ओके, सो आई एंड द क्लास नाउ। अल्लाह हाफिज।